कहीं पर ज़मीन कौन ले रहा है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे जिससे कि किसान खुद ब खुद अपनी ज़मीन को घाटे का सौदा समझ करके खुद बेचना पसंद करेगा और ये कहेंगे बच्चे कि इससे अच्छा ज़मीन बेच दो और शहर में एक प्लॉट या कोठी खरीद लो। तो यही है। देखो इतने दिन हो गए हैं, आप ये कहो कि आप कहीं भी फसल बेच सकते हो, अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। पहली बात ये है कि आप कोई भी चीज़ है किसी को भी वैक्यूम में सेल नहीं कर सकते, वहाँ पे मार्केट होना ज़रूरी है। कोई भी अगर दुकान, एक दुकान बाज़ार में बढ़िया चलेगी या कहीं पे अकेलापन जहाँ पे सुनसान जगह होगी वहाँ पे दुकान खोल करके बैठ जाओ, हम बेचेंगे किसको? जी की नाम भाजी अपना? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हैगा जी ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। मैं शिकार माछिया मेरा पिंड है, डेरा बाबा नानक ब्लाक जिला गुरदासपुर तो है। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, मैं मैंबर नहीं हैगा। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ? ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਆਦਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਫालतू ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਫालतू ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। 36-37 ਦਿਨ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम सुरेंद्रपाल एडवोकेट है, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? मैं कल आया हूँ इस आंदोलन में, क्योंकि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और इसलिए मेरा जुड़ाव है, इसलिए मैं कल यहाँ पे आया हूँ और आज यहीं पे हूँ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? संघर्ष ਨੂੰ देखो, हर गांव में हर आदमी, हर बच्चा, हर औरत की एक ही आवाज़ में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। काले कानून हैं क्या? काले कानून का शब्द हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिया था। जब अंग्रेज़ कानून बनाते थे तब उन्होंने काले कानून कहा था अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों को।
आज भी हम लोग ये कह रहे हैं कि काले कानून वापस लो। उनको काले कानून क्यों कहते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी? क्योंकि एक अच्छा कानून वो होता है जिस कानून के अंदर जनता की इच्छा दिखाई दे और सरकार की बुद्धिमत्ता दिखाई दे। ये जो तीनों कानून बने हैं और चौथा जो बिजली कानून है, उसमें ना तो कहीं पे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और ना ही कहीं पे सरकार की विजडम दिखाई देती है। इसलिए इनको काले कानून कहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, औरतें, मैंने कल देखा यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली में रात को करीब 9-10 बजे वो नारे लगा रहे, हाय हाय काले कानून वापस लो। तो मैंने जब देखा उस ट्रॉली के अंदर झांक करके, उसके अंदर 3 औरतें, 3 जनानियाँ और 2 छोटे छोटे बच्चे वो हाय हाय कर रहे हैं। तो जब जनता हाय हाय करने लग जाए तो वो काले कानून हैं और वो हाहाकार सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार को इनका संज्ञान लेकर के इन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। मैं एक बात और कहूँगा कि मैंने इन तीनों कानूनों का अध्ययन किया है। इन तीनों कानूनों में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो जनता के या किसानों के हक में दिखाई देता हो। अगर कोई लोग ये कहता है कि ये कानून किसानों के हक में हैं, तो मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे एक ही प्रोविज़न ये बता दें कि इस कानून के अंदर ये प्रोविज़न है जो किसानों की मदद करता है। ये पहला जो कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके अंदर जो इन्होंने अमेंडमेंट की है सरकार ने, वो अमेंडमेंट केवल और केवल स्टोरियाँ जो हैं, जो होर्डिंग करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, उन्हीं के ऊपर उन्हीं का फ़ायदा करेगी, वो स्टोरियों के लिए है। दूसरा कानून है जिसको फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड बोलते हैं, यानी कि वो उन व्यापारियों के लिए है जो किसानों के साथ बार्गेनिंग करके और सस्ते में फसल खरीदेंगे। उनको ये दिखाया जाएगा कि मार्केट में इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको कोई नहीं पूछ रहा है और किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। किसान को उन व्यापारियों के रेट पे ही अपनी फसल देनी पड़ेगी। वो व्यापारी फिर चाहे जहाँ पे बेचें उसको और कितने ही भाव में बेचें, ये उनके लिए है। तीसरा जो कानून जो बनाया है, जिसका हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेनली उस इंडस्ट्री के लिए है, उन कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए है। उससे भी किसानों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार ये कहती है, जो मैंने सुना है कि इसमें बिचौलियों को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सेक्शन 10 है उसके अंदर तीसरा बिचौलिया यानी कि उसको लीगलाइज किया गया है। यानी कि जो भी कॉरपोरेट सेक्टर वाला कोई भी बड़ा व्यापारी अगर किसान से कोई भी समझौता करता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो उस बिचौलिए के माध्यम से ही करेगा। तो बिचौलिए ख़त्म नहीं हुए हैं। कौन कहता है बिचौलिया ख़त्म हो गया? दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ये भी है कि जो एग्रीमेंट होगा, पहली बात तो किसानों को वो समझ में नहीं आएगा। जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, बैंक वाले हैं, वो कहाँ पे साइन करवाते हैं? जो लेने वाला है वो मजबूर होता है, क्योंकि किसान का और जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो बड़े व्यापारी हैं, इनका लेवल नहीं है। जो किसान है, दे आर नॉट इन ए बार्गेनिंग पोजीशन। तो जब आदमी जो बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं होता तो दूसरा अपने स्टेटस का मिसयूज करता है। इसलिए वो जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट के अंदर लेकर के आएंगे, किसान को उसी पर सहमत होना पड़ेगा। अगली बात ये है कि जो इनके बीच में जो एग्रीमेंट होएगा, तो कॉरपोरेट सेक्टर के पास उसमें राइट है कि वो उसको क्रेडिट कर सकता है, उसके ऊपर वो ब्याज पे पैसा उठा सकता है बैंकों से। तो अगर बैंकों से पैसा उठाया जाएगा तो किसके उस पे उठाया जाएगा? कल को अगर वो भाग जाता है तो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन देगा? मतलब जिस बैंक का किराया कौन देगा? बैंक किसको पकड़ेगा? उस प्रॉपर्टी को पकड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या है? उसमें जो फसल है वही तो है जिसके ऊपर बैंक ने श्योरिटी मान करके उस व्यापारी को लोन दिया है। तो ये कहने की बात है कि जी इससे किसानों की ज़मीन कैसे चली जाएगी? ज़मीन का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ये तरह से कहीं ना कहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगली बात ये है कि फिर भी अगर हम इस चीज़ को मान लें कि कहीं पर ज़मीन कौन ले रहा है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे जिससे कि किसान खुद ब खुद अपनी ज़मीन को घाटे का सौदा समझ करके खुद बेचना पसंद करेगा और ये कहेंगे बच्चे कि इससे अच्छा ज़मीन बेच दो और शहर में एक प्लॉट या कोठी खरीद लो। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ पता होना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 का शुरू हुआ था, जब बीमारी थी ही नहीं तो लॉकडाउन तब लगा दिया, ठीक है। उसी के बीच में ये जो सारे कानून हैं ये बनाए गए हैं। देखो, सरकार ने उस महामारी का और जो एक्ट लगा रखे थे उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा लेना, ऐसा किसान भी मानते हैं, जनता भी मान रही है, क्योंकि वो टाइम गलत था। उस टाइम पे ऐसा कानून लेकर के आना, ये जो कानून है, जो विधेयक लेकर के आए, उस टाइम पे बिल लाई गए थे, ऑर्डिनेंस लाई गई थी। ऑर्डिनेंस उस टाइम पे लाई जाती है जब किसी चीज़ की बिल्कुल इमरजेंसी है,
डू और डाई वाली सिचुएशन है, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस ले आई जाती है। और इस टाइम पे जब ये कोरोना महामारी, सरकार खुद कह रही है कि महामारी थी, और कृषि कानून ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन देश में नहीं थी कि इन कानून को लाया जाना, अध्यादेश के रूप में उनको लागू करना वो ज़रूरी था। अगर अध्यादेश 6 महीने तक है, उसमें अगर आप उसको कानून का रूप नहीं देते तो वो अपने आप लैप्स हो जाता है। इसलिए सरकार का सरकार उस चीज़ को, उस किसानों के उस भ्रम को दूर नहीं कर पाई है अभी तक, जो मैं मानता हूँ कि ऐसा हमने इस ओकेजन को, इस अवसर को हमने मिसयूज नहीं किया है। ये काम सरकार का है कि सरकार उनको कहे, बताए, लेकिन सरकार के जिस तरह से सरकार लेकर के आई है, जिस तरह से इस कोरोना के टाइम में इनको ऑर्डिनेंस को लागू किया और फिर उसको एक कानून का रूप दिया संसद में, जिस तरह से वो कानून पास हुए संसद में, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर शक करते हैं। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 50% ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 50% ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਲ ਕੇ 100% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਸ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ।